Hello, my people. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing well. So am I. So today I'm going to try and tell few bits and pieces of my life through stories. Wow! I'm just going to start making episodes of it. So this will be the first episode that's going to air online. But to be honest, I'm just trying to do different things to just check that if that is giving me joy also. Narration and story narration is something that I really love. Okay, now you will say ये क्या है, gossip कर रही है, पर gossiping का भी एक it's a way of telling things. मतलब अगर आप रिलेटेबल नहीं हो और अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो कोई नहीं सुनेगा आपका गॉसिप. तो अगर आपको मज़ा दिलवाना है लोगों को, देन यू हैव टू बी वेरी फ्री इन व्हाट यू थिंक. ओके, तो मतलब इतू सा अगर चीज है तो उसको ऐसा कैसे बनाना है, वो that is art altogether, I feel. तो I'm not going to do that. Basically मैं जो है वो ही बताने वाली हूँ, but I'm just going to try my hand in like storytelling, countering down to things that are going to give me views. Now people will be like, wow, what is this? Views नहीं मिला तो नहीं करेगी क्या? तो it's not like that, but like, somehow you have to like validate your feelings also. I think human life is such that कि आपको कुछ तो वापस रिटर्न में चाहिए, तो आप मोटिवेट हो जाओगे और फिर आप और काम करोगे. अगर आप मोटिवेट नहीं होगे तो आई थिंक इट्स वेरी सैड आफ्टर अ पॉइंट, क्योंकि आप करे जा रहे हो, ये कहीं जा नहीं रहा है, डायरेक्शन नहीं ले रहा है. बट यू नो what universe tells us is that just fall. Okay, I am there. Just escape yourself through this whole turmoil of emotions and just be present. So I guess वो बोलने को तो बहुत सारी चीज़ें हमें याद रहती है, बट लाइक while doing it consistently, जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमें अप्लाई करना है, फॉर दैट it takes a lot of guts and बहुत ज़्यादा टाइम लगता है to do that. So yeah, so that is it. But anyways, I'm still going to start with the story. So this takes me back. See, since childhood I've grown up watching this award functions, ek to, then also Coffee with Karan, and it was one of my dreams that I will be a part of Coffee with Karan episode. I don't know how, but it was just there. Like, I remember going in the bathroom and I used to shower for an hour or two. So people from my family who used to ask, "Tu evda वेळ काय करती bathroom मध्ये?" They used to realize it was just like I was mimicking few actresses in front of the mirror, and I used to be like, yes, ask me questions, I have very nice answers to that. So I think that was my first instinct towards like answering back the questions. That's why I'm also like very impulsive talker, like or like if you're doing a conversation with me, I'll be like, go get it, grab it. Like I know what you're going to say, what you're going to ask, and I know before answering you I have processed everything कि इसका काउंटर क्वेश्चन ये आएगा, फिर उसके बाद मुझे क्या आंसर देना है वो भी मुझे पता है. सो आई थिंक आई एम अ मेंटलिस्ट ऑफ दैट सॉर्ट. पर सो या, सो बचपन से मुझे आदत थी to listen to all this episodes and interviews and हाँ, पर वो जो ख्वाहिश थी वो ख्वाहिश ही रह गई है. मतलब वो ड्रीम फुलफिल नहीं हुई कभी कॉफ़ी विद करण जाने की. बट आई ऑफन फील कि अगर मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया, जैसे वो मिस यूनिवर्स और सब में पूछते हैं ना कि टेल मी वन गुड थिंग दैट यू डन इन योर लाइफ, इफ समबडी आस्क्स मी. सो बहुत सारे किए हैं वैसे. मतलब आई एम अ गुड पर्सन, आई वुडंट डिनाई दैट, और मे बी लाइक आई डोंट वांट टू डिनाई दैट. बैक टू द स्टोरी. तो बचपन से मुझे ये आदत थी कि आई यूज्ड टू सी दिस, वॉच दिस एपिसोड्स एंड ऑल ऑफ दैट, एंड देन आई यूज्ड टू ऑलवेज वंडर इफ समबडी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, देन वन गुड पार्ट दैट इज ऑलवेज दिस वन मेमोरी ऑफ मी हेल्पिंग somebody is so stuck in my head. But basically you cannot help somebody unless and until you are in a guilt trip. कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि आपने ये कभी तो गलत किया है, तो इफ़ यू आर कर्मा बिलीवर देन यू विल थिंक कि कुछ तो अच्छा करने से मेरा वो जो बैड कर्मा है वो ख़त्म हो जाएगा. So I think that is why people end up doing, like, that's my thought process. That's why people doing good deeds, in general in life. Like, I don't know, but yeah, that's it. That's what I think. So why I'm saying this is आपको समझ में आएगा जब ये स्टोरी स्टार्ट होगी. मेरा 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम था, ओके, एंड
see, 9th 10th is a different board altogether, okay, and you of course anybody scores very good marks in 10th, so मुझे मिला था somewhere around 87 88, वो भी जो नेशनल्स मैंने खेला था, एक बार स्टेट लेवल को रिप्रेजेंट किया था, तो मेरे को स्पोर्ट्स कोटा भी मिल गया था, ठीक है. सो माई डैड वॉज एक्सपेक्टिंग मोर, ऑफ कोर्स ही वॉज एक्सपेक्टिंग 94 98, क्योंकि मेरा जो था वहाँ पे एडेड एंड नॉन एडेड कॉलेजेस थे, ओके, एंड देन एवरीबडी वॉज प्रेफरिंग अ एडेड कॉलेज. सो फॉर एडेड कॉलेज यू हैव टू हैव अ वेरी गुड स्कोर, ओके, नॉन एडेड से. सो उसमें जो लाइन थी फॉर द कॉलेज जहाँ पे मेरा नंबर लगा था, इट वॉज ऑल ऑनलाइन जब मेरा टाइम था, ओके, 12th का. तो जहाँ पे 11th का, तो जहाँ पे मेरा नंबर लगा था, दैट वाज वाडियास. पीपल इन पूना मस्ट नो दिस कॉलेज. यू नो व्हाट हैपेंस इज इंडियन पेरेंटिंग म्हणजे एक प्रॉपर महाराष्ट्रीयन, स्विचिंग टू मराठी गाईज, एक महाराष्ट्रीयन फॅमिली अशी असते की तुम्हाला लहानपणापासून आहे ना, असं म्हणजे मिडल क्लास महाराष्ट्रीयन फॅमिली लाईक दिस, की तुम्हाला लहानपणापासून असं तुम्हाला ठोसलं जातं की तुमची 10th इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्ही 10th क्लिअर करा, मग तुम्ही 11वी 12वीला तुम्हाला जसं पाहिजे तसा अभ्यास करा, 10वी क्लिअर करा. Once you do 10th, then is the 12th. Then once you do 12th, is the graduation. Then after graduation is the masters. So it's never ending in the middle class families, especially Maharashtrian families. But माझ्या घरी पण तेच होतं. So it was for me, it was like 10th standard clear केलं. Wow. Wow was like a roar आता, but ignore that part, ठीक है. तर मी ते केलं, huh? And then what happened is when I cleared my 10th with good percentage, dad was still angry because वो जो line थी वहाँ पे they were like people from Bishops. Now these schools that I mentioned, Bishops, St. Mary's, St. Anne's, okay, all of these are convent schools, okay. In I think Bishops is not a convent school, I think it is an ICSE and IB board, but you know how it is. SSC board वाले लोग, आपको पता है कि आप कितना अंडर प्रिविलेज्ड हो ये सब मामले में, तो वो आपको जब कॉलेज में आप जाते हो एंड देन यू रियलाइज कि ये भी एक अलग ही सर्कल है भाई. सो yeah, all of the schools were there, and I was also from my school, which was an SSC board school, and they were very good. Like their scores were 98, 97, 96, 9, and the biggest thing was that ये एक मिसोजिनिस्ट जो सोच रहती है कि लड़कियों को बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है. मेरे आगे पीछे 4 लड़के थे, ओके, इन दैट लाइन, एंड आई वाज विथ माय फादर एंड माय ब्रदर्स, ओके, वन ऑफ माय ब्रदर and his friends were also there. Intentionally got my brother into the picture, Jayu Dada, who is a bit, you know, he's very strong build and he's very tall, he's very smart looking. So it was like just to give that impression कि इसके आगे पीछे ये मेरी लड़की के. It was that now that when I have a daughter I understand this कि उन्होंने क्यों बुलाया था. Why had he called my brother there for that admission process? नहीं तो उसका कुछ काम नहीं था, कुछ नहीं था. And he has got his 4 other boy like friends who are exactly looking like him, okay, and they all, मतलब 2 लोग थे और कुछ लोग तो अकेले ही आए थे एडमिशन के लाइन पे मेरे साथ एडमिशन लेने को. माय डैड, दिस 4 people, अदर पीपल एंड माय ब्रदर, ये हम लोग 6 लोग एक ही लाइन पे. एंड यू नो व्हाट दिस बॉयज वर डूइंग, दे वर जस्ट गोइंग आगे पीछे इन द लाइन एंड दे वर आस्किंग आपको कितना परसेंटेज मिला, आपको कितना मिला, इतना इतना. सो ये सब हो रहा था, ठीक है. एंड देन डॅड गॉट व्हेरी पिस्ड की यार माझी मुलगी असून हिला कमी पडलेत पुढं 95 96 मिनिट पडलेत मुलं. मग पप्पा एनेवर दे यूज्ड टू से द मार्क्स, माय डॅड यूज्ड टू लुक लाईक दिस टू मी, ओके, काय लक्ष असेल तर अभ्यास करेल ना, दिस इज व्हॉट ही सेड, ओके, टू माय ब्रदर. आई एम लाईक एक्सक्यूज मी, व्हॉट इज रॉंग विथ यू गाइज. And then he was like science, and I took science, okay. Now coming to the point, ये back story क्यों बताया मैंने कि why did I take science, because my father asked me to take science. I was never a science student, I was not interested. थोड़ा टाइम के लिए था कि डॉक्टर बन जाते हैं, बहुत इज्जत है, पर उसके बाद कुछ नहीं था, मतलब ऐसा कुछ मेरा माइंड गेम नहीं था that I have to take science, okay. So but because dad said take science, I took science, ठीक है. 11th बहुत अच्छा गया, ठीक है. I was in 80s, 75, 80s. 12th पता नहीं मुझे क्या हो गया, पता नहीं, मतलब what happened. ती म्हणतो ना हवा येते एक
ती तशी हवा आली मला वाटतं. I was in that air, okay? And I was just floating, and it was more like, you know, politics, like, you know, group friend circle, group कि ये लड़की ऐसी है, वो लड़का ऐसा है, इस लड़की का इस लड़कों को नहीं, इस लड़की को ग्रुप में नहीं लेना है, नहीं तो ये हम लोग भी वैसे बन जाएंगे, यू नो, दे विल स्टार्ट कॉलिंग. ये सब ग्रुप पॉलिटिक्स में मैं भूल गई कि मुझे पढ़ाई भी करनी है. Till the time it was my board exams, and I kid you not, I have not studied even a bit for my board. Like I'm laughing right now, पर मेरी फटी हुई थी जब मेरा रिजल्ट आने वाला था, because I thought I'm gonna fluke. मैं पास ही नहीं हो सकती हूँ, ऐसा मुझे लग रहा था in my mind. Coming back, तो what happened is कुछ चीट विट नहीं किया था, पर मैंने जो था ना, मुझे पता था कि ना ये मुझे लग रहा है कि ये आएगा, बट फिजिक्स मैथ्स, okay, for people who are from science background, you know, you have to either choose bio or you have to choose maths. But just because everybody was choosing maths, I thought I'd also choose maths. Wow. I literally didn't choose biology, and I think that was the biggest stupidest thing that I could do, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था. केमिस्ट्री में भी आ जाता है वो, ठीक है, because when you have to search for the elements, वो एलिमेंट्स का कुछ तो मुझे याद आ रहा है, कुछ तो होता है, उसके नंबर्स रहते हैं, राइट, साइन, तो जैसे कि ये हो गया हाइड्रोजन का, हो गया 2, नहीं ऑक्सीजन का 2, कुछ नंबर्स रहते हैं, पर ऑक्सीजन का 2 रहता है, ऐसा हर एक यू नो केमिकल का एक नंबर रहता है. एंड आई थॉट केमिस्ट्री तो अच्छा है, केमिस्ट्री मुझे अच्छा लगा था. करो केमिस्ट्री, मैंने बायो तोड़ दिया, तो केमिस्ट्री में भी सम्स आए, वो जो बड़े बड़े क्वेश्चंस थे 10 मार्क्स की, दैट यूज्ड टू कम ऑन दिस सम्स ओनली, कि ये इक्वेशन करो और इसका आंसर निकालो, ठीक है. देन फिजिक्स वाज देयर, एंड फिजिक्स तो ओ माय गॉड, आई कैन नॉट बिलीव आई हैव टेकन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स का तो मुझे कुछ पता ही नहीं था. पता है, मतलब फर्स्ट डे से मुझे कुछ पता नहीं था क्या चल रहा है, बिकॉज उसमें आ गया है सब कुछ. हाँ, डेरिवेटिव्स आ गया है, और कुछ था, इंटीग्रेशन आ गया. आई वाज लाइक ये क्या है भाई, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब मेरे को सिलेबस पढ़ के भी नहीं, ये नहीं आने वाला है. सो लिटरली आई वाज लाइक कि ये तो मुझसे नहीं होगा, फिर मैं क्या करूँ अभी. सो व्हाट आई डिड इज आई यूज्ड टू स्टडी ओनली नाइट बिफोर द एग्जाम. I studied, I went, and I was like, and I was so confident. मैं घर आती थी and मेरे डैड को बोलती थी. and एक पेपर के पहले तो क्या हुआ है, बाहर मेरे गेट के, मतलब my house, and there's like this veranda outside it. So वहाँ पर kittens आए, and they were just abandoned by their mother. I don't know, and they were just doing की. You know how kittens do? The smaller one kittens, मतलब just born. कैसे उसके की. They don't do meow at that point. So they were doing that. And then I saw, and I was like, oh my god. मुझे लगा अगर मैं इनका अच्छा करूँगी तो मैं पेपर में पास हो जाऊँगी, इसलिए मैंने उनको अंदर ले लिया. रात भर उनको दूध पिलाया है, उनकी पट्टी जो है वो क्लीन. फिर मैंने देखा कि वो पट्टी भी करे इधर उधर. देन आई मेड अ बॉक्स. इमेजिन, कार्डबोर्ड निकाला है ऊपर जाके माली पे, और मैंने बॉक्स बनाया. एंड माय पेरेंट्स आर थिंकिंग आई एम स्टडिंग नीचे, ठीक है, और मैंने बॉक्स बनाया है और उसमें मैंने ये किटन्स को डाला है. एंड देन they have pooped, they have done what not, I've given them food to eat, and the whole night I was just looking at these kittens and I was studying also. And उसमें से एक मेरे क्लोज आता था, I was like, and I was an animal lover. ऐसा नहीं है मैं नहीं थी, मैं genuinely I felt really bad because it was pouring really bad at that point. So I was like, इनको अगर कुछ हो जाएगा, मर जाएंगे तो कितना बुरा. Let me just like, you know, take everything on my shoulders. So मैंने उनको लिया है घर के अंदर, ठीक है, and all of that I've done. And then cut to मेरा एग्ज़ाम होता है, ठीक है. एग्ज़ाम के बाद मुझे पता है बहुत गंदा पेपर गया है, बहुत गंदा पेपर. बट यू नो, पीपल हु हैव स्टडीड इन वाडियास वुड बी नोइंग दैट देयर इज अ कोटा फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट्स देयर, ओके. सो फॉर दोज स्टूडेंट्स they have a quota, okay. Now for basically usually for the blind students what they do is they need a writer to help in the exam. भाई उनका पेपर था 3rd ईयर का, उनको चाहिए था इंग्लिश राइटर, और कौन था, दो तीन सब्जेक्ट थे उनके, वो आई हैड टू क्लियर. एंड यू नो दे वर आस्किंग फॉर राइटर्स. एंड मेरा लास्ट पेपर का दिन था, एंड आई हैड फ्यू फ्रेंड्स इन द कॉलेज, एंड दे वर लाइक, यू नो, तनाव, कैन यू लाइक हेल्प दिस पीपल.
and I was like, I saw them, मैं हो गई emotionally full, and I was like, no, I have to help them, I have to pass this person, I have to pass them, I have to make sure that he passes, it's about his future and stuff. And I have like literally in my papers of 12th exam, I have ruined my future and I'm thinking of somebody else's future. But imagine, then I go back at home, okay, And then I got my mama's place, okay, and my mama, like my elder, smaller mama, sorry, smaller mama is very close to me. So he asked, तनु पेपर कसे गेले, and then कसं चालू आहे तुझं? And I'm like, मामा खूप छान पेपर गेले, खूप छान पेपर गेले, पण अजून मला अभ्यास करायचा आहे, खूप अभ्यास आहे. म्हणजे अरे परीक्षा तर संपली, बिकॉज 12th का तो सबको पता ही रहता है ना, बोर्ड के एग्जाम कब चालू होते हैं, खत्म है. दिस इज अ वेरी बैड थिंग. आई थिंक सबका अलग अलग टाइम पे पेपर होना चाहिए, सबको पता चल जाता है, सब कॉल करते हैं कैसे गए पेपर, क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ. व्हाई डू हैव टू डू ऑल ऑफ दिस? पहले ही इतना प्रेशर रहता है स्टूडेंट्स के ऊपर, कुछ जरूरत है एक सिविलाइज, मतलब एक सेंट्रलाइज टाइम टेबल बनाने का नहीं है जरूरत, प्लीज नहीं चाहिए हम लोगों को. फिर उनको पता, देन आई वाज लाइक, नहीं मला अभ्यास करायचा नाही. ही वाज लाइक, का तुझी परीक्षा झाली ना, मग अजून कसला अभ्यास? देन आई टोल्ड हिम की आय एम डूइंग दिस. यू नो, दे वर लाइक टू ब्लाइंड पीपल हु आस्क्ड फॉर माय हेल्प, सो आई एम गोइंग टू राइट द पेपर, एंड द पेपर इज एक्जैक्टली स्टार्टिंग एज सून एज आई एंड माय एग्जाम्स, ठीक है, 12th का. एंड देन ही वॉज व्हेरी प्राउड ऑफ मी. ही वॉज लाइक, वाव, तू हे सगळं करते आहेस, किती शानी मुलगी आहे, हे खूप जास्त चांगलं काम आहे, तुझे करते आहेस ते. आणि मी म्हणले की हो मामा. बट ॲट दॅट पॉईंट, सी आई टेल यू, ऐसा बहुत बार होता है लाइफ में कि यू डोंट रियलाइज यू डन अ गुड डीड एंड यू जस्ट डू इट. मतलब पता है आपको लेटर ऑन व्हेन यू सिट एंड यू थिंक अबाउट इट ना, ये उसमें से एक इंसिडेंट है कि यार सच में मैंने किया उन लोगों को. एंड आई किड यू नॉट, जितना मैंने 12th में मेरे सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ाई नहीं की, उतना मैंने इन लोगों के सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ाई की. आई एम नॉट किडिंग गाइज. आई हैव डन जनरल नॉलेज, एक कुछ तो था साइंस रिलेटेड कुछ तो था, और एक जो था वो ये था EVS या कुछ तो था, एक इंग्लिश था. I have literally sat down the whole night and I've studied my heart into it. And मैंने ऐसे पेपर लिखे उनके, ऐसे मैं गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि they must have, like I was so sure, मेरे पेपर्स के बारे में I was not sure, but I was so sure कि ये लोग पक्का फर्स्ट आएंगे क्लास में, बिकॉज मैंने इतना पढ़ाई किया था उन लोगों का. एंड दैट्स व्हेन आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट मेरा इंटरेस्ट आर्ट्स में है, मैं साइंस कहाँ आ गई हूँ, ये भी मुझे तभी ही रियलाइज हुआ. बिकॉज आई वेंट ऑन लाइक, you know, like I could just explain one answer, so like it was like lengthy, और मेरे को इतना empowerment फील ही नहीं हुआ कभी कि मैं इतना लिख भी सकती हूँ पेपर में. क्योंकि 12th तो माय गॉड, 11th 12th साइंस वो कुछ लिखने ही नहीं आता था. मतलब क्या ही है ये, पूरा लॉजिक ही है, मेरे को नहीं समझ में आया, रिलेट ही नहीं कर पा रही थी मैं स्टडी से. तो जब मैं आई स्टार्टेड, यू नो, लाइक व्हेन आई फेल्ट कि वाओ, आई फील सो गुड राइटिंग दिस पेपर, ये मेरे टाइप का क्वेश्चन है, ये मेरे टाइप के आंसर्स है, ठीक है. डोंट जज मी गाइस, प्लीज डोंट जज मी, but listen to the story I had. So then I wrote their papers and I did those people. So basically कैसे रहता है, उन लोगों को आपको आंसर्स बताना पड़ता है and then you have to write, ठीक है. पर उन लोगों को कुछ नहीं पता था. And see, I'm not going to be like कि ये moral policing कि नहीं ऐसा क्यों किया तूने, सब लोग बोलेंगे मुझे why have you done. I don't think so. It's anybody is going to watch it also. पर लाइक फिर भी अगर किसी के मन में आया ना कि ये तूने क्यों किया, ऐसा क्यों किया, सो आई वुड स्टिल लाइक टू टेल देम कि गाइस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. आप आँख बंद करके चलना सीखो, पढ़ाई तो दूर की बात है, ये आँख खुले है, दिखने पे भी अच्छी हूँ, सब अच्छा है, दिमाग अच्छा है, बात करने का तरीका से, तो भी पढ़ाई नहीं हो रही है उनको. तो गाइस दे डोंट हैव एनी सेंस हियर, तो कैसे पढ़ेंगे यार, बहुत डिफिकल्ट है उन लोगों के लिए. उन लोगों की बार ना उनका अलग रहता है, वो ब्रेल, is it braille on, I don't know what is called, but हाँ मुझे यहाँ पे कैप्शन लगा दूंगी मैं उसका राइट नेम का. सो इट्स दैट, यू नो, दैट्स हाउ दे रीड. इनका तो कुछ बुक भी नहीं था, तो मैंने पूरा ढूंढा कॉलेज में, मैं रुकी मेरा पेपर खत्म होने के बाद कि इनका बुक कौन सा है. देन दे आस्क्ड मी टू गो टू द स्टेशनरी, बाय द बुक्स, स्टडी फॉर दोस बुक्स. देन आई हैव गॉट दोस बुक्स, आई हैव स्टडीड. आई एम टेलिंग यू, आई हैव पुट माय होल हार्ट इनटू लाइक स्टडीइंग दोस सब्जेक्ट्स. And then I am 100% sure वो लोग फर्स्ट करेंगे, फर्स्ट, because I was the only one who was writing so much. सब लोग मेरे को देख रहे हैं. I have asked for supplements. Imagine, I have asked for supplements. And then you know, and those बेचारे, and I was just like, don't worry, मैं हूँ, मैं पास कर दूँगी. And then that happened. So
that was my story. I don't know if people see why I'm saying this is, you know, लाइफ में हम लोग बहुत बिजी हो जाते हैं यार. लाइक वी फॉरगेट अबाउट द गुड थिंग्स दैट we've done in our lives for ourselves and for people, you know. हम भूल जाते हैं, पता नहीं कैसे क्या, पर ये एक ऐसा इंसिडेंट है that I don't think so I've ever like proudly shared across. But like I said in my first video also, like this channel is just a replica of my emotions and feelings that I feel are very caged at some point of time, and I just want to like be out there and say what I feel, you know, just want to put my thought across. So that's why I thought of like sharing this. But मेरे मन में ये भी चल रहा था कि मैंने इनका पेपर अच्छा किया तो मैं शायद पास हो जाऊँ ये पेपर में. And I had no hopes whatsoever, but I cleared my 12th boards and I was not happy. मैं ऊपर जाके लॉक लगा के बैठ गई थी. But and literally my dad was very pissed. He didn't took any interest in my first year का admissions. He asked, तू जा, तू शोध कॉलेज, तू बघ कोणतं कॉलेज तुला देत आहे ऍडमिशन. एंड देन आई वेंट यार. मैं सब अकेले किया. फर्स्ट ईयर में कोई नहीं आया था मेरे साथ. 12वीं में दिखा दिए थे मैंने रंग अपने, तो कोई नहीं आया था मेरे साथ. मैंने ही किया सब. बट लाइक ट्रस्ट मी, देन आई चोज आर्ट्स एंड it was Tanaya 2.0. I was a scholar. I was getting really good grades. I was like in the air. I was like at the top, you know. नहीं किया अटेंड तो भी मुझे सब आता था. नहीं हुआ कुछ भी तो भी मुझे सब. एक टाइम भी 2 सब्जेक्ट्स क्लियर करने तो भी मैंने किए. मतलब एक एक्सीडेंट हो गया था इसलिए मुझे करना पड़ा. बट उसके बाद देयर इज नो स्टॉपिंग. आज तक देयर इज नो स्टॉपिंग. बाय द वे, आई एम डूइंग माय मास्टर्स राइट नाउ एंड आई टेल यू नाउ, आई किड यू नॉट भाई, मैं ऐसे पेपर्स लिखती हूँ मतलब मैंने पूरा मेरा निकाल दिया. मतलब फर्स्ट टू 10 जो मैंने पढ़ाई नहीं की है, नहीं 10 तक की थी, 11 जो 12 जो मेरा बैकअप पढ़ा है मैंने पढ़ाई नहीं की है, मैं पूरा बड़ा पेपर में निकाल दी. मैं इतना पढ़ाई करती हूँ भाई, एक दिन पहले ही हो क्यों ना हो, बट लाइक what matters is what you write in the paper. And I can guarantee, किसी को भी पूछ लो, मेरे प्रोफेसर को पूछ लो, point to point में लिखती हूँ. और I don't score less than 80% for you guys. So yeah. So that's it. Happy. I don't know why I'm like so excited, but that's what I'm saying. That's how you should feel about yourself every day. I feel, you know, एक incident याद करके मुझे इतनी खुशी मिल रही है यार. पता नहीं यार मैं क्यों नहीं, मतलब बताना चाहिए incidents ऐसे, है ना? Watch more from episode number 2. I might do this again. Okay. But anyways, thank you for watching. Love you guys.